sketch करेंगे. So what we have in syllabus is this third period elements and the ionic radius graph of third period elements. So the third period elements, उसमें we have positive and negative ions both, like sodium, magnesium, aluminum, silicon. These are all the positive ions in the third period. उसके बाद negative ion है phosphorus, sulfur, chloride. Noble gases do not make ions, so we don't count argon in it. तो अब the thing is कि जो positive ions हैं, their ionic radius decreases across the period. Negative ion का भी decrease होता है, but all the negative ions are bigger than the positive ions, because the difference in negative ions is that they have gained electrons, their outer shell is intact. Positive ions have rather lost the entire shell, right? So इसमें concept मैं ये point लिख के फिर इसका graph sketch कर देता हूँ. So in the ionic radius, all anions are bigger than cations. And this is like for every period. All the anions are bigger than all the cations in a period. And the facts are like, अभी मैं और भी explain करूँगा. The students who have joined now, the last thing before Eid and the break I took, we were doing was the ionic radius and atomic radius. उसमें मैंने ionic radius explain किया था. Positive ions are smaller than their atoms. Negative ions are bigger than their atoms. लेकिन उसमें जो period में graph है ionic radius का वो हमारा रहता था. तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो स्टूडेंट न्यू है दे डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये लिंक्ड है पिछले से. इसको छोड़ के इससे अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उससे आप इसको समझें. इन टॉपिक्स को मैं आपको अलग से कराऊंगा कंप्लीट. तो पॉजिटिव आयंस का साइज भी डिक्रीज होता है, नेगेटिव का भी डिक्रीज होता है, लेकिन ऑल द नेगेटिव आयंस आर बिगर देन ऑल द पॉजिटिव आयंस. उसकी रीजन है अगेन, ये जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं they have two shells, क्योंकि इन्होंने एक एक आउटर शेल लूज कर दिया हुआ है. और ये जितने भी नेगेटिव आयंस हैं they have three shells, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वैलेंस शेल में, और वो ऐड होने के बाद एक्सपेंड भी कर रहा है. फास्फोरस हैज गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन, तो इट्स बिगर देन सल्फर 2 नेगेटिव एंड क्लोराइड 1 नेगेटिव इवन. इस तरह से अब इस बेसिस पे अगर मैं इसका ग्राफ स्केच करता हूँ, तो दिस इज लाइक व्हाट यू गेट इन एमसीक्यूज. वाई एक्सिस पे इट वुड बी आयनिक रेडियस, और एक्स एक्सिस पे इट्स द प्रोटॉन नंबर. लाइक सोडियम्स प्रोटॉन नंबर इज 11, मैग्नीशियम 12 एंड सो फोर्थ, क्लोरीन तक 17 है. तो सोडियम टू सिलिकॉन भी डिक्रीज होगा, ठीक है. सोडियम टू सिलिकॉन द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस. So it's like each dot is an element here. It's like sodium positive, magnesium 2 positive, aluminum 3 positive, silicon 4 positive. And then from phosphorus to chloride again it decreases, but you need to make sure कि chloride sodium से ऊंचा रहे. थोड़ा सा आप आगे जाके फास्फोरस टू क्लोराइड स्केच करेंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि क्लोराइड स्टेज हायर देन सोडियम. फास्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव. So once you draw this graph, you need to make sure one, chloride is higher than sodium ion. Second, आपने फास्फोरस को थोड़ा सा स्लैंट बनाना है, सिलिकॉन के बाद आगे जाके बनाना है. लाइक डू नॉट ओवरलैप दिस लाइन ओवर दिस लाइन, ठीक है ना. ये वाली पूरी लाइन इसके ऊपर नहीं बनानी. दोबारा बनाओ, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए इसको मैंने इधर पॉइंट आउट कर दी. So I hope you remember this is what we were doing, right? Like perhaps in online class 8 से पहले हमने जो टॉपिक कर रहे थे ना, ionic radius कर रहे थे कि positive ions are smaller and negative ions are like bigger than their atoms.
उसका एक ग्राफ हमारा रहता था थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में, आयनिक रेडियस का ग्राफ। दिस इज व्हाट वी गेट इन पेपर, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सबके लिए एक दफ़ा। Okay, so what we have in syllabus once again is the ionic radius graph of third period elements. और इसमें again we have sodium, magnesium, aluminum, silicon. The first four elements are like positive ions. They have lost one shell, so they're left with two shells still. And then we have phosphorus, sulfur, chloride, the ones which have gained electron and still have three shells. Logically speaking, an element with three shells will be bigger than the one which has two shells in it, right? So all the negative ions are bigger than the all positive ions in the same period. ठीक है ना, एक ही पीरियड में पॉजिटिव आयन स्मॉल होते हैं और नेगेटिव आयन सारे बड़े होते हैं। दैट मीन्स कि जो नेगेटिव आयन में सबसे स्मॉल है क्लोराइड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो स्टिल सोडियम से भी लार्ज होगा क्योंकि इट स्टिल हैज थ्री शेल्स एक्सपेंडेड, और इसके पास टू शेल्स हैं और वो रादर स्मॉल हो गया साइज में। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो पॉजिटिव आयन में भी डिक्रीज दिखाते हैं, नेगेटिव आयन में भी डिक्रीज दिखाते हैं, बट नेगेटिव आयन को पॉजिटिव से हाई रखते हैं। You people do not get to sketch these graphs like even in last 15 years structured paper भी आप solve करेंगे तो कोई एक भी ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं है। तो we get them in MCQs, we get these graphs sketched already, आपको करेक्ट ग्राफ पिक करना होता है और वो छोटी छोटी डिफरेंसेस पे ग्राफ पिक हो रहे होते हैं। लाइक यू माइट फाइंड a graph where chloride is shown lower than sodium, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से मैंने कहा कि फास्फोरस को आपने सिलिकॉन से, क्योंकि प्रोटॉन नंबर नीचे इंक्रीज हो रहा है, सिलिकॉन 14 है तो फास्फोरस हैज टू बी 15, तो बिल्कुल इसको लाइन को इसको ऊपर नहीं प्लॉट करना आपने, ठीक है। सारे पीरियड्स के लिए ग्राफ सेम है, जो ग्राफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का है, सेकंड का भी वही है, फोर्थ का भी वही है, सबका ट्रेंड सेम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करके, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री A2 के सिलेबस में है, AS में नहीं है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आएगा भी तो एग्जामिनर आपसे ट्रांजिशन S और P ब्लॉक, जो आगे हमने पढ़ना है ब्लॉक्स, उनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रांजिशन से नहीं पूछ सकता AS में। तो अब सिंस दिस कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड टू द प्रीवियस वन व्हिच वी डन लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज अगो, इस वजह से इसमें अगर कोई डाउट है जिन्होंने पढ़ा है वो पूछ सकते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जो डिफरेंट है, न्यू है, और वो सब जो बच्चे नए ऐड हुए हैं वो भी समझ सकते हैं उसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हम कर रहे हैं और उसमें इंट्रोडक्शन मैंने कराया। इंट्रोडक्शन में भी आप जी बेटा। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही, लेट मी चेक माय माइक, इज इट लैगिंग और सर वो बीच में कटती है, नेटवर्क बैंडविड्थ लो का था। नहीं, आवाज लैग कर रही है, डिस्टॉर्शन है। सर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन थी, ओके, आई होप अब नहीं है, अब ठीक आ रही है। सर स्क्रीन लैग हो रही है। अच्छा चलें, लेट मी ट्राई, आई होप एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज ठीक ही लग रहा है। चलें दोबारा से ट्राई करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration. In fact, that's the next topic. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक क्या है, ये मैं आपको भी पहले थोड़ा इसका आइडिया देता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे।
All right. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम है, कोई भी एलिमेंट है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और अगर आप किसी ओ लेवल के स्टूडेंट को कहते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, कि लाइक सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट दीज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम? तो वो आपको बताएगा 2 8 1, right? Like there are 3 shells in sodium, and first shell has 2 electrons, second has 8, and the last one has 1 electron. But what we study in electronic configuration concept in AS is not this. In fact, is rather the latest configuration, which says sodium's electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So this thing that we study for sodium, for example, is rather the electronic configuration or the latest electronic configuration. ये वाला obsolete method है, पुराना method है जो साइंटिस्ट ने दिया था, जो IGCSE O level तक अप्लाई होता है. लेकिन ये वाली configuration जो आप A level में आके पढ़ते हो, for any element by the way, it does not get changed further, right? ये throughout chemistry में फिर ऐसी है. तो ये चीज़ हमने पढ़नी है इस कॉन्फ़िगरेशन में, और इसमें डिफरेंस है. इसमें हमें शेल्स और सब शेल्स का पता चलता है, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पता चलता है. उसमें कुछ नहीं पता चलता, उसमें सिर्फ ये पता चलता है टोटल शेल्स कितने और लास्ट शेल में और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो व्हाट दिस इज व्हाट वी स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं, क्योंकि एट टाइम यू गेट डेफिनेशंस इन स्ट्रक्चर्ड पेपर, और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की भी जो डेफिनेशंस हैं वो सही पूरी तरह ठीक नहीं होती. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज systematic distribution of electrons in different energy levels around nucleus in an atom. Like if you're asked to define electronic configuration, so this is how you could write. It's like systematic distribution of electrons in different energy levels around nucleus in an atom. अच्छा, अब इसमें कुछ शुरू में छोटी छोटी टर्म्स आएंगी जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट और मेन कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक, और दैट इज लाइक शेल. इसको हम केमिस्ट्री में एन से इंडिकेट करते हैं. शेल के लिए वर्ड क्वांटम नंबर भी यूज होता है, शेल और क्वांटम नंबर. अच्छा, इस क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो रहा है, फिर वो वापस ज्वाइन करते हैं, तो आई पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है, तो बस कोई मुझे रिमाइंड करा दे, इनबॉक्स कर दे, लेकिन ये मुझे याद रहेगा, मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में. So electronic configuration is systematic distribution of electrons in different energy levels around nucleus in an atom. And to study the electronic configuration आपको कुछ basic concepts establish करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है shell. और शेल को हम केमिस्ट्री में इस टॉपिक में एन के साथ इंडिकेट करते हैं, और प्रॉपर लैंग्वेज में क्वांटम नंबर भी हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं. सो क्वांटम नंबर और क्वांटा बेसिकली इज अ टर्म यूज्ड फॉर शेल इन केमिस्ट्री. ठीक है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल्स के लिए. तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं, तो इट्स लाइक लार्ज एनर्जी लेवल हैविंग subshells in it. Like it's a larger energy level which has subshells in it. तो उसको हम शेल या क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और n के साथ इंडिकेट करते हैं. This value of n can be 1, 2, 3, 4 and theoretically speaking infinite shell भी हो सकता है.
whereas जो known atoms है उनमें total 7 shell ही होते हैं. And the value of n could be 1, 2, 3, 4 and so forth. इस तरह से increase होता है. अच्छा, अब जो number of shell है, ये पॉइंट्स हैं कुछ, मैं लिखता हूँ, आगे चल के इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. नंबर ऑफ शेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल्स. लाइक एक एटम में जो शेल नंबर है उससे हमें ये भी पता चलता है कि उसके अंदर सब शेल्स कितने होंगे फर्दर. लाइक फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सब शेल इन इट, वो आगे मैं बताऊंगा वो कौन सा होता है. सेकंड शेल में देयर आर 2 सब शेल्स, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स एंड सो फोर्थ. ये इसी तरह सीक्वेंस चलता है. इसी तरह से बिफोर आई राइट दैट, आप लोग मुझे बताएं कि अगर एक एटम है उसमें न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल्स हम इस तरह से सर्कल्स के साथ इंडिकेट करते हैं. ऑल्दो वी नो कि शेल सारे राउंड नहीं होते, हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में. तो अब दिस इज शेल 1, दिस इज शेल 2, दिस इज शेल 3 और इन सारों में इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट है? Which shell electron energy is highest? First shell, right? Wrong. जो सेल न्यूक्लियस से ज्यादा पास है. जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, that makes it first shell, right? ये गलत हो गया बेटा. अच्छा, अब देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा ही वो जो मुझे पता होता है कि बच्चों को नहीं आएगा, या मिक्स करते हैं जिसको बच्चे, या अदर वे अराउंड बताते हैं. It's not like that. In fact, greater the shell number, greater the energy of electron. ठीक है, इसको आपने याद रखना है फ्यूचर में. फायदा तब होगा जब पेपर में भी इसी तरह से लिख के आओगे, वरना गड़बड़ है. और उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है ना. तो इसी पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ कि ग्रेटर द शेल नंबर और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, greater the energy of electron. अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है ये भी मैं बताता हूँ. आज तो बहुत स्टूडेंट लॉग आउट होते हैं बेचारे, फिर लॉग इन हो रहे हैं. समथिंग इज रॉन्ग एट माय एंड, आई गेस. सिग्नल तो पूरे शो कर रहे हैं. अच्छा, अब जितना शेल का नंबर लार्ज होगा उतनी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी. और ये क्यों होता है ऐसा, इसको भी समझे जरा. देखिए, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. all the electrons have same negative charge, right? इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज की अमाउंट है वो फिक्स्ड है. दैट्स लाइक 1.6 इन 10 to power -19 कूलम्स. फिक्स्ड है. सारे इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज सेम है. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड बाय द न्यूक्लियस, राइट? दे आर लाइक बीइंग अट्रैक्टेड. अब जस्ट इमेजिन कि एक एटम बन रहा था और उसमें इधर न्यूक्लियस है, and these are all the electrons around it, not in the shells yet. ये बाहर फिर रहे हैं, मजे से इधर उधर जा रहे हैं electrons सारे. Now all these electrons have different energy in them. हर एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, सेम नहीं होगी. अब जस्ट इमेजिन व्हेन दिस एटम वाज बीइंग मेड, तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियस इनको पुल कर रहा है. आप लोग मुझे बताओ कि किस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इजीली पुल करेगा? द वन विद द हाईएस्ट एनर्जी और द वन विद द लोएस्ट एनर्जी? लोएस्ट वाले को पुल करेगा ना. कमजोर है बेचारा, वो उसके पास एनर्जी नहीं है, वो फास्ट मूव नहीं कर रहा, तो वो न्यूक्लियस उसको पुल कर लेगा पास. अच्छा, जब उसको अपने पास पुल करेगा, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन था, so it would actually come and lie in the first shell. So all the electrons with the same lowest energy would make up the first shell. तो जो हाईएस्ट वाला रेबल इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर दूर ही रहता है. समझ आई ये बात? अच्छा, इसको याद रखना है अब आपने फ्यूचर में, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब ओ लेवल से आते हैं तो हाँ, मैं उस तरफ आ रहा था. Soon after this I explain that concept also. In fact, that concept links to this. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक एटम है उसको मैं हीट करता हूं बाहर से, तो सारे पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, राइट?
तो विच इलेक्ट्रॉन विल जंप आउट ऑफ द एटम फर्स्ट? जंप कौन करेगा बाहर इलेक्ट्रॉन? द वन विच इज इन द वैलेंस शेल। रिएक्शंस में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? द वंस विच आर इन द वैलेंस शेल, ये पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले नहीं करते। और एटम में से जंप जो बाहर करेगा, जंप करने वाला टॉपिक हमने पढ़ना है इसी चैप्टर में, आयनाइजेशन एनर्जी आगे। तो जब आपसे कोई पूछे कि विच इलेक्ट्रॉन्स विल जंप आउट ऑफ द एटम फर्स्ट, द वंस विच आर ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले ही सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी सबसे कम है, और एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी बाहर से, this electron after gaining that extra energy will be able to overcome this attraction and jump out easily, right? समझ आ रही है? देखो इसके पास पहले ही ज्यादा एनर्जी थी आउटर मोस्ट शेल के पास, और उसको थोड़ी सी एनर्जी आपने बाहर से दी, तो उसको अंदर जो होल्ड कर रही थी फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना बस। तो जब वो उसको मिल जाएगी फौरन, तो बाहर जंप कर जाएगा। लोएस्ट एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसको पहले सेकंड शेल में जाना पड़ेगा, फिर थर्ड में जाना पड़ेगा, फिर बाहर जाएगा। फर्स्ट से बाहर नहीं जा सकता कभी भी। अब अनलकीली हमारे सिलेबस में ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है कैम्ब्रिज में, जिसमें ये सारी डिस्कशन होती है एनर्जी की, शेल्स की, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन की। तो इस वजह से हम ब्रीफली इधर ही बताते हैं बस इसको। मायरा क्वेश्चन है, पूछो। बस इसमें जो चीज़ आपने रिटेन करनी है वो क्या है कि जितना शेल का नंबर ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसको न्यूक्लियस एटम से एस्केप करना भी इजी है, थोड़ी सी एनर्जी से वो एक्सेप्ट कर जाएगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑफ हायर एनर्जी। ठीक है ना? गुड, चलें, अच्छा। So the point that I wrote is important. Shell is like the larger energy level. It has subshells in it. We indicated by letter N, and then number of shell equals to number of subshell, and greater the shell number, higher the energy of the electrons in that. अच्छा, इसके बाद अब शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, जो मैंने इधर लिखा है उसकी तरफ आते हैं। तो सब शेल, third shell will have 3 subshells in it, right? But the number of subshell is generally, like type of subshells is fixed. Like जो subshells हैं, एक तो पहले इनकी definition हम लिख लेते हैं कि these are smaller energy levels having orbitals and electrons. मतलब subshells के अंदर orbitals होते हैं और orbitals के अंदर electrons होते हैं। Basically जो atom है, it resembles to a large building, as if we try and quote it that way. जैसे एक लार्ज स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें आपको पता है कि स्कूल की बिल्डिंग में प्राइमरी ब्लॉक अलग है, सेकेंडरी ब्लॉक अलग है, लेवल ब्लॉक अलग होता है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट सीनियर क्लासेस में जाते हैं, तो यू नो देयर ग्रुप्स आर डिफरेंट इवन। तो बिल्कुल जैसे आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं स्कूल में, ए लेवल का, IGCSE का, तो वो ब्लॉक सब शेल्स हैं। द होल स्कूल बिल्डिंग इज एन एटम एज सच, और उसके अंदर जो ब्लॉक्स के अंदर आगे रूम्स हैं, लाइक ए लेवल ब्लॉक के अंदर अगर 10 रूम्स हैं, तो वो उसके ऑर्बिटल्स हैं, और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं आप कह लो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है, लाइक एटम स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू मेनी थिंग्स इन जनरल, जहाँ पे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है। खैर, जो सब शेल्स हैं, देयर स्मॉल एनर्जी लेवल, दे हैव ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर आर 4 सब शेल्स। इनको आप इस टेबल में ऐड कर लेंगे, इनकी डिटेल्स आपको याद रखनी है। सो इट्स लाइक सब शेल हियर, its orientation, shape orientation का एक ही कॉलम बन जाएगा। So it's like subshell, shape और orientation। ओरिएंटेशन इन स्पेस का मतलब है कि कितने डिफरेंट तरह से हमें वो नजर आता है। ठीक है, तो द फर्स्ट सब शेल इज एस, spherical।
and it has one orientation, single orientation. इनको भी मैं ड्रॉ भी करता हूँ। फिर लाइक अगर इसके साथ ही आप छोटा सा बना लें एक स्फेरिकल राउंड स्फीयर शेप, और फिर पी सब शेल, इट्स डम्बल शेप, जैसे वेट लिफ्टिंग डंबल है उसके दो लोब्स होते हैं, एंड इट हैज 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब 3 कैसे बनती है मैं बताता हूँ, लेकिन एक डंबल शेप आप साथ इसके इधर भी बना सकते हैं, और इसके साथ अगर आप छोटी सी स्पेस और ऐड कर दें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की, क्योंकि वो भी इधर ही लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, लाइक एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो S subshell can have 2 electrons in it, P subshell can have 6 electrons in it. फिर D subshell और F subshells की shapes हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। D की A2 के सिलेबस में और F की है ही नहीं, लेकिन ओरिएंटेशन सर्कल के नीचे क्या लिखा है? किसके? स्फेरिकल के नीचे डंबल। डंबल जैसे वेट लिफ्टिंग डंबल होता है ना, 2 लोब्स होते हैं उसके, ये वही है वर्ड। D subshell has 5 orientation in space, इसकी शेप नहीं है हमारे सिलेबस में, और F की 7 orientation in space में। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आपको आनी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट AS के सिलेबस में S और P की डिटेल्स हैं, these two are in AS, मैं इधर लिख भी देता हूँ, और D जो है वो A2 में, F है ही नहीं, मतलब F की शेप्स स्केच करना रिक्वायर्ड नहीं है लेवल में। लेकिन किस सब शेल में kiतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये आपको याद रखना है। F में 14 आते हैं, D में 10 आते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब S और P को मैं क्विकली थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज क्लास में डिस्टॉर्शन का भी मसला रहा है, 2-3 बच्चे ड्रॉप भी हो गए, वो मैं ग्रुप में वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, तो मैसेज भी किए हुए उन्होंने, लेकिन ये कि यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे तो फिर रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सर ये वो टेबल ना अरेज करना, असल में ब्लर हो रहा है अभी स्क्रीन पे, अब सही है। हमजा कुछ कह रहे थे आप, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो मैं सर टेबल का कह रहा था, टेबल लिख रहा, हाँ टेबल असल में में ब्लर हो रहा था ना। अच्छा ठीक है, अब नजर आ रहा है आपको? यस सर, ये 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 14 लिखा है ना? हाँ 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14। सही है। सर जो ओरिएंटेशन के साथ 1357 लिखे, इसका क्या मतलब है? ओरिएंटेशन और ये जो चीज है ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यहीं से इनफैक्ट कल भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो एस सब शेल है, ठीक है, उसको आप थोड़ा समझ लेंगे, बाकी फिर यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। एस सब शेल्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन राउंड, तो इनफैक्ट डिफरेंट एस सब शेल्स डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन कोई भी एस सब शेल हो उनको हम इंडिकेट करते हैं बाय नंबर्स लाइक 1s 2s 3s, इस तरह से। तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, इसको समझेंगे पहले जरा, ये कॉन्सेप्ट की चीज है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज स्पेस में हमें कितनी डिफरेंट तरह से नजर आती है, ठीक है। लाइक अगर एक चीज स्फेरिकल है, राउंड है, तो स्पेस में इट डज नॉट लुक डिफरेंट। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक टेबल टेनिस की बॉल है, ठीक है। अब टेबल टेनिस की बॉल है, अगर उस पर कोई मार्किंग नहीं है, इफ इट्स एंटायरली ग्रीन, हाँ नहीं ग्रीन तो नहीं होगी, लॉन्ग टेनिस की बॉल या जो ग्रीन बॉल होती है ना जिससे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो अगर आपने वो हाथ में पकड़ी है और उस पर मार्किंग कोई नहीं है, तो उस बॉल को अगर आप पकड़ के किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको डिफरेंट नहीं नजर आएगी, वो है ना, एक ही जैसे नजर आएगी। तो आप ये नहीं कह सकते, या टेबल टेनिस की बॉल को भी अगर हाथ में पकड़ के आप देखते हो डिफरेंट तरह से स्पेस में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे इस साइड से डिफरेंट नजर आती है, इधर से डिफरेंट नजर आती है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की स्पेस में कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं होती, सिंगल होती है, राउंड नजर आती है बस। या आप ये समझ लो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसी बॉल के ऊपर अगर मैं किसी भी जगह पे फिंगर रखता हूँ तो वो उसका सेंटर बन सकता है, ठीक है ना।
तो राउंड ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या एस सब शेल की कोई स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं है, इट लुक्स सेम ऑल द वे। तो दिस इज व्हाट सिंगल ओरिएंटेशन मींस। अब वन ओरिएंटेशन विल ऑलवेज हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो कोई भी एस सब शेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स दो ही आएंगे, ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 1s और 2s और 3s में डिफरेंस क्या है, ये लास्ट चीज है, इसको समझना कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। डिफरेंस इन सब में ये है कि सारे एस सब शेल हैं, सारे स्फेरिकल हैं, सारों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इनमें सिमिलर ये है कि इनकी शेप सिमिलर है और इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी सिमिलर है। ठीक है, तीनों स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन सब में 2 आ रहे हैं, लेकिन जो चीज डिफरेंट है इन तीनों में वो इनका साइज और एनर्जी है। ठीक है, 1s मींस फर्स्ट शेल का एस सब शेल, 1 फर्स्ट शेल के लिए फर्स्ट शेल का एस सब शेल। 2s मींस सेकंड शेल का एस सब शेल। अब सेकंड शेल इज बिगर देन फर्स्ट शेल, थर्ड शेल इज बिगर देन सेकंड शेल। तो 2s मींस सेकंड शेल का एस सब शेल, तो एस सब शेल होगा स्फेरिकली, लेकिन 2s विल बी बिगर देन 1s, 3s विल बी बिगर देन 2s। इलेक्ट्रॉन सब में 2 ही आएंगे, लेकिन 3s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन सारों में सिमिलरिटी क्या है? शेप सेम है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी सेम है। डिफरेंट क्या है? साइज। लाइक 3s के इलेक्ट्रॉन्स बड़े सर्कल में मूव कर रहे हैं, 4s के इससे भी बड़े में मूव करेंगे, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। डिफरेंट एनर्जी और साइज है, सिमिलरिटी शेप और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसी तरह पी सब शेल डम्बल है तो वो डिफरेंट नजर आता है स्पेस में, लेकिन कल मैं एस सब शेल से दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपने पूछना है पूछें, लेकिन ये है कि यहीं से कल इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे एस सब शेल्स। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर देता हूँ, आई होप हो रही है और सेव भी हो जाएगी। नहीं है, लेकिन एनर्जी वैरी करती है जितना साइज बड़ा हो। हाँ, जितना सब शेल का साइज इंक्रीज होगा उतनी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे एस सब शेल में सेम होंगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। बस सही। ठीक हो गया, गुड। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।